So, good morning, students. Today is the fourth module, that is laser and fiber optics. So, in this units, we will discuss about the two important topics or chapters, that is laser and fiber optics. So, in first chapter, we will discuss about the laser, principle of laser, properties of laser light, types of laser light, uses of laser light, applications of laser lights, and other many so important parameters that defines the laser light sources. So in this topic, in this first topic, we will discuss about the detailed term of laser. So we know that the word laser is the full name of laser light is light amplification by stimulated emission of radiation. Clear? So the laser light amplification actually it works on the principle of stimulated emission of radiation. It is a techniques it is a techniques that works on the scientific principle, that is stimulated emission of radiation. So again we know that what is laser light? Laser light is a device that amplifies or increase the intensity of light and produce highly directional light. जनरली आप जानते हैं कि लेजर लाइट को एम्पलीफाई करने के काम में आता है. लाइट मींस उस सिग्नल का वोल्टेज को बढ़ाएगा, पावर को इनहेंस करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, इनहेंस करेगा. और in other words we can say that it is also used to produce highly directional light. So what is directional light? Directional light means it contains all the photons, emitted photons are in same direction. Clear? So in other terms, we can say that it is not only amplify or increase the intensity of light, but also generates the light. So in terms of generating the light means it also emits the light through a process that is known as stimulated emission of radiations, and which amplifies or increase the intensity of light. So with the help of this process, that is stimulated emission of radiation, we can amplify or increase the intensity of light also. So laser is a superior light sources compared to other ordinary light sources. And what is the important in laser? It works on the principle of stimulated emission. So this phenomena makes laser mostly important in other light sources. Some lasers generate visual light, but other lasers we know that there are different types of lasers. Some lasers are solid material based, some lasers are gaseous material based. So some lasers generate visual light. विजुअल लाइट का जो रेंज होता है लगभग 4000 से 7000 के आसपास. बट कुछ लेजर्स जो होते हैं उनका जो रेंज होता है इंफ्रार रीजन में भी हम जा सकते हैं, और अल्ट्रावायलेट से इंफ्रार रेडिएशंस में हम जा सकते हैं, रेंज में जा सकते हैं. जनरली इंफ्रारेड होता है 7000 से ऊपर, एंड दीज आर लाइट सोर्स आर इनविजिबल. क्लियर? So again, laser are widely used in different field and applications. There are so many applications of laser light. It is widely used in communication. It is widely used in medical sciences also, and there are these are also used in screen war coding also. They are also used in आपका सोल्डरिंग में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली. और इसके अलावा हम ड्रिलिंग के लिए, माइक्रो और नैनो ड्रिलिंग के लिए भी हम जनरली लेजर का इस्तेमाल करते हैं, जो अदर लाइट सोर्सेज से पॉसिबल नहीं हो पाता. अगर हम बात करें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, तो आप देख सकते हैं कि लेजर यहाँ पर जो दिख रहा है ये एक यूनिफॉर्म रेडिएशन दिख रहा है, हाईली डायरेक्शनल दिख रहा है. और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लेजर में दैट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइट सोर्सेज. अदर लाइट सोर्सेज मींस बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल लाइट्स है. सो हाउ इट इज डिफर फ्रॉम दीज लाइट टू सोर्सेज? सो वन पॉइंट, it has extraordinary properties, that means which are not present in the ordinary light sources like sun and different types of lamps also. So what are the important properties we will discuss in our next slides. So
one point that is also important, the conventional light sources such as electric bulb, tube light does not emit highly directional and coherent light. तो यहाँ पर देखिए वही पॉइंट की बात है कि हाईली डायरेक्शनल मींस इसमें जो रेडिएशंस या जो फोटॉन्स जनरेट होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यूनी डायरेक्शनल कह सकते हैं। और जब यूनी डायरेक्शनल होंगे मींस सारे जो रेडिएशंस होंगे, फोटॉन्स होंगे, सेम फेज में होंगे, दैट मींस इट ऑल्सो प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट मींस जहाँ पर सारे रेडिएशन सेम फेज में होते हैं, ऐसी लाइट को हम कोहेरेंट लाइट कह सकते हैं। Whereas laser produce highly directional, monochromatic, coherent and polarized light beam also. In conventional light sources, excited electrons emit light at different times and in different directions. जो emitted photons जो generally होते हैं, जो light का form कह सकते हैं हम, जो radiate power है, that is generated in different directions at different interval of time. So we can say that there is no phase relation or phase difference between the emitted photons. There is phase difference actually. On the other hand, the photons emitted by the electrons of laser are in same phase. Actually में यहाँ पर क्या होता है कि जो phase का जो relation है वो कोई relation नहीं दिखाई देता। आप कह सकते हैं कि phase जो है वो distinguish हो सकता है, but in case of laser the phases आर इन सेम पोजिशन। फेज का मतलब है उनका जो डायरेक्शन है, जो एंगल है वो सेम होता है एंड मूव इन सेम डायरेक्शन। सो पर्टिकुलर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज मेक्स लेजर लाइट यूनिक। So here we will discuss about the important characteristics, mainly the important or unique characteristics of laser light that make differentiate from other light sources, that these are coherence। कोहेरेंस का मतलब है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कोहेरेंस का मतलब है कि जो एमिटेड फोटॉन्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। डायरेक्शनलिटी, जब फेज सेम होगा तो उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। इट मींस दे शोज लेस स्कैटरिंग और लेस डाइवर्जेंस फिनोमेना। डाइवर्जेंस मींस आपका लेंथ के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस के साथ इसमें डाइवर्जेंस नहीं होता, बिकॉज इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत हाई होता है। और वी नो दैट कि अगर जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसमें स्कैटरिंग कम होता है। ये मोनोक्रोमेटिक भी होते हैं। मोनोक्रोमेटिक मीन्स इनमें जो वेवलेंथ होता है या फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। हाईली इंटेंस होता है। जब आप देख पाते हैं जब इनमें कोहेरेंस है, यूनिडायरेक्शनल है, तो इनका जो इंटेंसिटी होता है ये भी हाई होता है और इंटरफियरिंग के थ्रू जनरली यहाँ पर हमें एम्प्लीफिकेशन होकर लाइट मिल पाता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ लेजर लाइट की, सो इन लेजर लाइट्स जो इट वर्क्स बेसिकली इन 3 मैकेनिज्म, or we can say that photons are interacted in 3 ways with the atoms. So one of the important mechanism are absorption of radiations, second one is spontaneous emission and third one is stimulated emission. Generally ये जो दोनों फिनोमेना है, absorption of radiation and spontaneous emission, ये mostly सोर्स लाइट सोर्सेज में, ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज में है। लेकिन जो स्टिमुलेटेड एमिशन है दैट ओनली ऑकर्स इन लेजर लाइट। सो in case of laser light we find out amplifies light sources or amplified light source और enhanced intensity का light हमें इस केस में मिल पाता है। तो हम बात करेंगे कि absorption of radiation generally क्या है। तो absorption of radiation is the process by which electrons in the ground state absorb energy from photons to jump into the higher energy levels। जनरली क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसको एक प्रोसेस के थ्रू दिखाएं तो ये देखिए इसमें मैंने एक डायग्राम इसमें नोट किया हुआ है कि हम जानते हैं कि हर मटेरियल एटम से मिलके बन रहा है। तो यहाँ पर अगर ये एटम की बात करें तो एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है जनरली, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्यूशंस होता है वो इसके आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में और सेल्स में, और हर ऑर्बिट का एक डेफिनेट यूनिक एनर्जी लेवल्स होता है। सो इवन इज द सपोज वी कैन से दैट दिस वन इज द लोअर एनर्जी स्टेट, दिस वन इज द हायर एनर्जी स्टेट एंड दिस वन इज द मोस्ट हायर एनर्जी स्टेट और मैक्सिमम हायर एनर्जी स्टेट कह सकते हैं हम इसको।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उनका एनर्जी उतना उसमें कम होगा, और जितना ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा उतना उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जनरली जो जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इनका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट पर हैं। अगर वो एनर्जी को, फोटोन को, जनरली एनर्जी मीन्स फोटोन को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने पर क्या होता है कि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वो अपनी पोजीशन से को लीव करने लगते हैं, या ये कहें कि वो अलग ऊपर के स्टेट में जंप करने लगेंगे, मीन्स दूसरे स्टेट की ओर जाने लगेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ, आफ्टर एब्जॉर्बिंग photon energy, they excited and jump to higher energy state. So this process is known as actual में absorption process. तो आप देख पा रहे हैं the electrons orbiting very close to nucleus are at lower energy state, and away from the nucleus are at higher energy state. So electrons in lower energy state need extra energy to jump to the higher energy state. So this extra energy is provided from the various energy sources, such as हम जो एनर्जी देते हैं जनरली उस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए हायर एनर्जी स्टेट में। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ ये जो एटम्स है, इसको अगर हमें इस स्टेट पर पहुंचाना है लोअर से हायर पर, तो इसके लिए हमें कुछ एनर्जी देना होगा, हीट देना होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देना होगा, या ये कहें कि इसको हमें कुछ लाइट देना होगा। तो वो लाइट को, उस एनर्जी को जनरली वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसका मोशन बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो हायर लेवल पर जाना शुरू कर देगा। तो ध्यान दें, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर? तो यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो E1 है, दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट एंड E2 इज द हायर एनर्जी स्टेट। So initial most of the electrons or atoms are present at ground state in initial conditions. When photon energy is given to this particular atoms, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स में, जनरली ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और आफ्टर एब्जॉर्बिंग, ये देखिए ये ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन है या बिफोर कह सकते हैं, बिफोर कंडीशन है, ये आफ्टर कंडीशन है, मीन आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, electron jumps to excited state or higher energy state after absorbing photon energy. So this process is known as absorption of radiation of light. So जनरली इसमें आप जो देख पा रहे हैं कि जो फोटोन जो एब्जॉर्ब होता है जनरली, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी किसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस की इक्विवेलेंट होना चाहिए एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर उसका एनर्जी इससे कम होगा, इन लेवल्स के डिफरेंस से कम होगा, तो जनरली वो फोटॉन्स जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो वो फोटोन यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो फोटोन एब्जॉर्ब हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका जो एनर्जी है दैट is greater than to the energy difference in energy levels E2 minus E1. So this is the important parameters. So when photons or light energy equal to energy difference is incident on the electron and the atoms or electrons, so the जो electrons है gain sufficient energy and jump to the higher state. Clear? So the energy जो रेडिएट जनरली जो पैरामीटर्स है एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी का, so वो जो एनर्जी होगा दैट एग्जैक्टली मैच द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स E2 माइनस E1। अगर हम बात करें कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, दिस वन इज द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ लेजर लाइट। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में आप देख पा रहे हैं ये इट प्रोसेस आफ्टर द एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। अभी एटम्स आपका एब्जॉर्बेंस में हायर स्टेट पर पहुंच गया। जनरली ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं जो हायर स्टेट में है, जनरली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एटम्स को तो हम जनरली कहते हैं कि एटम्स मूव कर रहा है, जनरली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं दैट रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग फोटॉन्स, वो वापस फिर से ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, और वो जो एनर्जी को रिलीज करते हुए, जनरली उस एनर्जी को हम रेडिएट पावर भी कह सकते हैं। और वो जो एमिटेड फोटॉन्स हैं जनरली, उस एमिटेड जो फोटॉन्स होते हैं, उस प्रोसेस जो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कह पा रहे हैं। जनरली ये देखिए आप डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन।
कि यहाँ पर हम ये देखिए, ये इसमें बिफोर फोटोन एमिशन मींस फोटोन एमिट होने के पहले आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रेजेंट इन एट एक्साइटेड स्टेट इन इनिशियल कंडीशन, बिकॉज इट जस्ट कम्स आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सो यहाँ पर हायर स्टेट पर बना हुआ है। जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है दिस स्टेट का, तो यहाँ पर जैसे ही वो स्टेट का टाइम पीरियड खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे आने लगते हैं, लेकिन उनका जो एनर्जी होता है उतने टाइम तक वो एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो वो जो फोटॉन्स होते हैं, जनरली एनर्जी मीन्स फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ नहीं होता, तो वो वापस फिर ग्राउंड पर गिरने लगता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम पीरियड है, so that is the 10 to the power minus 8 second. So after this interval of time period, the electrons return back to the ground state and emitting a photon energy. So ये जो फोटोन का जो एनर्जी हुआ, जनरली ये जो फोटॉन्स है, एमिटेड फोटॉन्स, दैट इज जनरली ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मींस दिस प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट ऑर्डिनरी इनकोहेरेंट लाइट। सो इनकोहेरेंट लाइट मींस क्या होता है? बीम ऑफ फोटॉन्स विच फ्रिक्वेंट एंड रैंडम चेंजेस ऑफ फेज। जनरली यहाँ पर जो फोटॉन्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन, ये जो एमिटेड फोटॉन्स हैं, ये इनसे जो लाइट बन रहा है जनरली उसको हम इनकोहेरेंट लाइट भी कह सकते हैं इसको, ये इनकोहेरेंट लाइट को दे रहा है। तो पॉइंट जो थर्ड जो प्रोसेस है, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिमुलेटेड एमिशन। So stimulated emission is the process by which incident photon interact with the excited electrons and forces it to return to the ground state generally। यहाँ पर देखिए हम क्या बात की कि यहाँ पर हम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में थे, तो ये टाइम पीरियड जब तक खत्म होता है 10 to the power minus 8 सेकेंड का, इसके बाद ये नीचे आता है स्पॉन्टेनियस में, तो वो टाइम पीरियड से पहले ही हमें क्या करना होता है, एक फोटोन के साथ हम इसको ट्रिगरिंग करा देते हैं जनरली। तो ये जो ट्रिगरिंग होता है, व्हेन इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट विद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, so it forces the excited electron to return to the ground state and repeated this transition again and again। तो एक बार और ये ट्रांजिशन रिपीट हो जाता है, तो यहाँ पर हमें एडिशनल फोटोन मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 फोटॉन्स जनरेट हुए हैं। जनरली ये जो एडिशनल फोटॉन्स है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द सेम एज द इंसिडेंट फोटोन। तो ये जो फोटॉन्स हैं जनरली, इनका जो डायरेक्शन होगा वो आप देख पा रहे हैं यूनी डायरेक्शनल है, सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे सोर्सेज जनरली, इनसे जो सोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ऐसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इंटरफिरेंस होने लगता है, क्योंकि जब दोनों फेज सेम होंगे तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो स्पॉन्टेनियस में और स्टिमुलेटेड में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर लाइट का एम्प्लीफिकेशन भी हो पाता है, बट इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस वहाँ पर लाइट का आप कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाता। तो ये डिफरेंस है स्टिमुलेटेड एमिशन में और स्पॉन्टेनियस एमिशन में। क्लियर? तो आगे टर्म्स में वीडियो में हम इनके बारे में डिफरेंसेस और कुछ आगे पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।